Okay. Start करो. Yeah. A very good evening to all the doctors and the colleagues and the friends. Friends, it's a great pleasure for me to introduce today's speaker, Dr. Manisha Kapoor Soni, my friend, my sister, my guide, okay, and my dearest friend in the world, I can say. She is principal of Virar Homeopathic Medical College. She is working in Virar Homeopathic Medical College since last 20 years. She's as senior as me in the medical fraternity. Dr. Manisha has done her BHMS from Motiwala Homeopathic Medical College and PG. She's done MD in homeopathy also, guys. She has a vast experience of teaching, of number of patients that she's seeing. She has a knack of treating diabetes cases. She has a knack of understanding people. She is very compassionate by heart. She's spiritually very high lady. She is one of the bestest females I have seen in my world. I feel so proud to talk about her. I can talk on issue at least for 1 hour continuously without taking a pause of 1 minute. Today, the lecture series that we've started 2 years back in June, friends, I am so happy to tell that today is the 96th lecture of this series. So very soon we are coming to end of this series. So I'm little emotionally, what do you call, overwhelmed and little, uh, what do you call? I'm little, I have no words actually. It's a wonder that I don't have words to talk about the success of this series that we've been doing since last 2 years. And this series is coming to an end in another month. Okay, now without wasting more time, I hand over the dais to Dr. Manisha Soni. One thing about today's lecture is just that just think very simple and an appeal to all the people who are attending. Please mute your phones whenever you want to ask any questions. You can unmute, but when the speaker is talking, please do not disturb by keeping your videos or audios on. Over to you, Nisha. Thank you. Welcome, Thank madam. you, Liaquat. Thank you. Welcome, Nisha. Thank you. So once again, thanks to Liaquat for this, warm words of encouragement and such a wonderful welcome. Thank you for this opportunity for this, for this webinar. It is a very nice platform of learning. I think like you said, it's been a wonderful journey, almost 2 years, and how we have learned so many things from you. So it's all because of, you, Liaquat, deep gratitude that today, I've been able to share this topic over here. It's because the kind of teaching that you do is so nice. It's easy to understand, and also it is easy to apply. So this is what I wanted to share through this lecture today. So going to the topic, it is deeper the pathology, simpler the remedy. So right from the beginning, when we are doing mind method with Dr. Liaquat, he keeps saying, simple socho, keep it simple. And, you've seen that the kind of cases that we learn from him, very differently, the rubrics are understood, from the person's perspective, and very simple. So that has always been, we're hearing that keep it simple. So earlier, maybe before I came into mind method, agar mere paas koi diabetes ya terminally
किडनी का कोई पेशेंट आता तो आई वुड हैव बीन थिंकिंग, गेटिंग स्कैर्ड दैट हाउ टू प्रोसीड इन सच अ केस। बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, या कैसे रेमेडीज देंगे, ऑर्गन रेमेडीज देंगे या नहीं। बट दैट हैज चेंज्ड since we came into mind method. So this is the take home message from today's lecture is that let's not get scared of any pathology. In fact, the deeper the pathology, very, very simple ways you can come to the remedy. So I'll share the first case is a very short case, though it is quite a deep understanding, but the way the patient presented and we were able to come to the remedy, it is very short and quick. So the first case is, again, it is a case of diabetes. And like how Liaquat said that, knack for diabetes, yeah, it's a metabolic disorder. It is only and only after Dr. Liaqat's seminar on diabetes in Lonavala that I have got the confidence to take care of diabetes cases and also feel that, yes, we can help these patients prevent complications. We can help them give a better life. And because of that, many patients are, those who are having chronic diabetes, they also want to take homeopathic medicine. But because of the effects of homeopathic medicine, many patients who are recently detected with diabetes, they also want to come. And that is a very good sign because there it's an initial process. So taking the patient back to, from diabetes reverse, that is easy, much more easier. So this first case is a case of क्रॉनिक डायबिटीज सिंस लास्ट 22 ईयर्स। ठीक है, ये पेशेंट को 22 साल से डायबिटीज है और साथ में उनको अभी क्रॉनिक किडनी डिजीज भी डेवलप हो गया। सो एज 59 और ही इज ऑन डायलिसिस। तो ये डेली जहां पर डायलिसिस करने जाते हैं वहां पर से इनको एक पेशेंट जो है जिन वो भी होम्योपैथिक ले रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर चले जाओ। उनको सडनली हिचकी स्टार्ट हो गई और कंटिन्यूस हिचकी आ रही थी उनको। सो जब वो डायलिसिस के लिए गए थे वहां पर भी उनको बहुत हिचकी हो रही थी, तो वहीं पे उनके दूसरे जो पेशेंट थे उन्होंने बोला आप चले जाओ। सो ही केम विद हिज वाइफ व्हेन आई वाज क्लोजिंग द क्लिनिक। So he came at the fag end when my brain capacity was absolutely ended. So patient जैसे वो अंदर आए तो उन्होंने गर्दन झुकाकर ऐसे नमस्ते किया और वो अंदर आए और उनकी वाइफ ने थोड़ा बताया। देन पेशेंट को हिचकी कंटिन्यूस आ रही थी और साथ में उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे लंबी लंबी हिचकी होती है और ऐसा लगता है कि मेरी सांस अटक जाएगी, सांस ही नहीं आएगी, उल्टी जैसा होता है, हिचकी आती है तभी, और मोशन भी मुझे कड़क होता है। Then a little bit of information from the wife. That patient was an engineer. He's retired as an engineer. She said कि कंपनी वाले तो उनको छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन मतलब वो अभी उनकी बीमारी थी तो उनको जैसे ही टुक रिटायरमेंट। और एक चीज था, फेस, ही वाज अ डार्क पेशेंट, लेकिन उनका फेस वाज वेरी स्ट्रेंजली बहुत ज्यादा डार्क, ऐसा ब्लैक लग रहा था। सो वो अंदर आने के बाद वो टेबल के ऊपर ऐसे बैठे और उन्होंने बोला हिचकी आ रही है, सांस अटक रही है, उल्टी जैसा हो रहा है, चेहरे पर उनकी परेशानी थी। और उन्होंने जो बताया कि उनको उल्टी जैसा होता है, दिस वाज द केस। अभी एज कंडीशन में कैसा था कि पेशेंट वाज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस हिकअप ओवर देयर आल्सो, तो देयर वाज हार्डली any time, or that was not the appropriate time to go into the details of the whole history. So I went very simple, based on very few rubrics. I selected a remedy and gave the patient. So now you all tell me what is the understanding. आप लोगों को क्या इसमें लगा बताइए। This is the case. Anyone? एक तो वेनरेशन लगा Okay. एंड अगर उन्होंने इसे आगे क्लिंग किया तो क्लिंगिंग है, क्लिंगिंग ग्रास्प। Okay. यही दो रूब्रिक समझ में आए।
ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स? कीप इट सिंपल। क्या समझा? एनीबडी? कुछ बहुत ज्यादा बड़ा केस नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है मैम, बहुत छोटा हो गया। तो लेकिन छोटे में भी पेशेंट ने तो बता दिया ना जो उनको बताना था। दूसरा केस मैं बताऊंगी, उसमें काफी सारा वो पेशेंट की कहानी है। मोरोज एंड सैड। मोरोज एंड सैड क्यों? मोरोज एंड सैड। ठीक है, शॉर्ट केस था, लेकिन क्या समझा इसमें से? एक तो वो कि मैम उन्होंने बताने पे मतलब किसी और आपके पेशेंट ने उनको बताया कि आप वहां पे चले जाओ, तो वो इधर आ गए आपके पास। और दूसरी बात ये कि वो आए तो आपके टेबल को क्लीन करके उन्होंने बैठा, और वो आपके साथ आते ही उन्होंने आपको नमस्ते या ऐसा कुछ जो भी आपने बताया वो ऐसा किया। और उनको कफ की प्रॉब्लम हो रही थी, डायलिसिस तो उनका चल रहा है ऐसा तो। और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। हाँ, पेशेंट ने अब वो बताया उनको, दूसरे किसी पेशेंट ने। वो बात सही है। और वो अंदर आए, जैसे आए, जैसे लियाकत सर हमेशा बताते हैं ना, डोंट मिस द एंट्री ऑफ द पेशेंट। और कितनी बार उन्होंने बहुत अच्छे से हमको सिखाया है एंट्री की रूब्रिक्स हमारे। और और किसी और को क्या, और कुछ पता चला जब भी? एंग्विश रेस्पिरेशन प्रिवेंटिंग। क्यों ऐसा एंग्विश? वो कह रहा है मेरी सांस अटक जाएगी और परेशान आप दिख ही रहा है काफी। और एंग्विश। इसके साथ ही जो है एंग्विश इसके में साथ हमको वो पेशेंट का एंग्विश भी दिखता है ना। तो मैंने तो आपको बताया पेशेंट ने क्या किया था, जैसे वो अंदर आए, वो कैसे बैठे, और उन्होंने बोला। एंग्विश के अंदर तो वो पेशेंट बहुत सी बार तो वो हालत में ही नहीं होंगे बताने के। और सोचिए। सिंपल सिंपल, जैसे अभी हमको दो तीन लोगों ने मैसेज भी किया है कि देयर इज हाउ द पेशेंट केम एंड सैट। 6 तारीख से कही जाओ शुरू कीजिए मुस्लिम में जाओ मानसून यार चल है पार से पेशेंट ने अपनी तकलीफ को लेकर क्या बताया? अपनी तकलीफ को लेकर क्या बताया होगा? सांस अटक रहा है। उन्होंने कहा ना, ऐसा लगता है कि मेरी सांस अटक जाएगी, सांस ही नहीं आई। हम इसको फियर सफोकेशन लेंगे क्या? यस, यस, वेरी गुड। अगर हम वी हैव टू लाइक हाउ एम्पथाइज, जैसे सर हमको बताते हैं कि इफ वी आर इन दैट सिचुएशन, की ऐसी कंडीशन जहां पर मेरे सांस नहीं आ रही है, तो क्या फील होगा? यू विल फील सफोकेटेड ना, यू विल फील कि अभी मैं नेक्स्ट मोमेंट आई विल गेट सफोकेटेड। व्हाट एल्स? वेरी गुड। व्हाट एल्स?
तो अभी आप ये ले लो, ये आपने एंट्री कैसे थी पेशेंट की? एंट्री कैसे थी पेशेंट? वेनरेशन के थ्रू मैम। वेनरेशन, वेरी गुड। तो ले लो, वेनरेशन ले लो, और ये नेक्स्ट वाला क्या लेंगे आप? टीयर सफोकेशन, क्लिंगिंग ग्राफ्स दैट रहता तो डालिए, क्या रेमेडी आ रही? है। आर्सेनिक पल्सटिला। आर्सेनिक पल्सटिला, ओके, ठीक है। और क्या था? और कुछ जो हम मिस कर रहे हैं? पेशेंट ने 5 या 10 मिनट में हमको जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उस समय, व्हाई कैरिड डिजायर फास्ट? प्रीति, व्हाई कैरिड डिजायर? मैम जैसे पेशेंट को पता चला कि आपके पास ट्रीटमेंट मिलेगा उन्हें, तो हाँ। वो आपके पास आ गए ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट। नहीं, बट वैसे तो वो तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे किसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, उसके पीछे उनका इम्प्रेशनेबल हो सकता है, उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो सकता है। यस, somebody else wanted to say. So carried desire में when patient will say something na regarding his that he wants to get well, light desire, not light desire. One more characteristic, two more characteristics and the remedy is clear. वैसे आपको रेमेडी क्या लग रही है पेशेंट की? स्ट्रामोनियम पॉसिबल लग रही है। स्ट्रामोनियम लग रहा है। वाई स्ट्रामोनियम? वो क्लिंजिंग वेरी मार्क था उसमें। क्लिंगिंग मार्क था, ओके। एनीबडी एल्स? क्या रेमेडी लग रही है? क्या रेमेडी लग रही है अभी अभी तक जो जो हमने समझा है पेशेंट को? हम आर्सेनिक हो सकते। आर्सेनिक क्यों लग रहा है? हम आर्सेनिक में पियर्स होते हैं बहुत, and उसको किडनी का डायलिसिस है, तो अगर हम वैसे चाहते हैं तो सम पियर इज वेरी मार्क्ड, मतलब किडनी पेशेंट हैं, इट्स कि किडनीज आर इन्वॉल्व्ड व्हेन देयर इज अ फियर इन somebody's life, a major part is there. But fear is there in so many other remedies, na? So how are you going to decide? अगर हम इन 3 मेडिसिन में देखें जो हम इन 3 रूब्रिक से, तो आर्सेनिक और पल्स आ रही है। Okay. तो इफ आई डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, तो आर्सेनिक मुझे लगा। Okay, okay, fine, that way. Okay, ठीक है। What else? Anybody else? Then I'll just share the thing before we go to the next case. Anyone else wants to give their understanding? Belladonna. Okay. ठीक है। So like somebody said ना, बहुत केस बहुत छोटा था। Yes, केस बहुत छोटा था, but वो छोटा केस was testing our understanding to the maximum degree ना, that we have to because the patient और अगर उसके हिक्कप बंद नहीं होते थे तो वो तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग ना एंड टेकिंग मेडिसिन? तो उसका हिक्कप तो बंद होना ही चाहिए था। सो एंड ही वाज लाइक डायबिटिक, और साथ में 22 साल से डायबिटीज है, फिर को किडनी प्रॉब्लम है। तो आई वाज आल्सो वेरी like cautious कि I have to give a very remedy which has to help him immediately. That was the main concern. So what, like I said ना, keep it simple means जो सामने दिख रहा है that I cannot ignore. So
the entry, like I always, I know, and this I'm telling you, friends, if you take hold of this teaching of Dr. Liaquat, you will never fail. And I have always held this, when the patient enters, do not miss whatever is, you see. So I took veneration. Okay. Then patient said that आके आ गए थे, तो okay, clinging. So yes, there is always clinging grasp and clinging furniture. So I take it at the last. So that I did not take immediately, but I showed you how the patient was sitting. Usme se somebody would have given me the gesture. Anybody can give me the gesture now? मैंने दिखाया पेशेंट कैसे बैठे थे. Anyone? हम एक बार फिर से दिखा दो. हेल्पलेस फीलिंग. ऐसे. हेल्पलेस फीलिंग. Okay. ठीक है. Anyone else? Gesture make hand to head. Well, बस so simple. Simple है ना? Veneration gesture makes hands to head. ये दो रूब्रिक डालेंगे तो कौन सी रेमेडीज आती है देखो. कौन सी रेमेडी आ रही है? आर्सेनिक. स्ट्रेमोनियम भी आ रहा है और आर्सेनिक भी आ रहा है ना जी. ओके. अभी इसके आगे और हम लोग क्या लेंगे? पेशेंट ने कहा मेरी सांस अटक जाएगी. सो समबडी सेड वेरी नाइसली फियर सफोकेशन. ठीक है, फियर सफोकेशन भी आप लेते हैं तो उसमें स्ट्रेमोनियम में भी फियर सफोकेशन है, आर्सेनिक में भी फियर सफोकेशन है. फिर आई टुक very characteristic physical symptom what the patient said. पेशेंट ने बोला कि मुझे हिचकी आती है तो मुझे साथ में उल्टी जैसा होता है. So I took nausea accompanied by hiccup, and that gave me the remedy arsenic. No problem. So this is arsenic. एक बार ट्राई. This is arsenic, which the physical rubric nausea accompanied by hiccup, they separated stramonium and arsenic. एक बार रिपीट कर दो. जैसे वो पेशेंट ऐसा, जैसे पेशेंट बहुत परेशान था ना अभी, ऑब्वियसली वो उसको कंटिन्यूसली कब हो रहा है, तो वी अंडरस्टैंड कि वो परेशान है, लेकिन वो परेशानी में वो टेबल पे आके वो सीधा ऐसे बैठे थे. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल जेस्चर. सर ने कितनी बार सिखाया है, जेस्चर्स मेक्स हैंड्स टू हेड. उसमें भी बहुत लिमिटेड रेमेडीज है, उसमें भी स्ट्रेमोनियम है, उसमें भी आर्सेनिक है. हेलो. हाँ, ग्रुप में चार्ट शेयर कर देंगे बाद में. ओके ओके, ठीक है, डन. So this patient was, I gave him arsenic 30 single dose, and I told him कि मुझे next day आप बताना. And believe me, magic of arsenic is that his hiccup stopped completely. Then after 1 week, patient came for a follow-up. So starting में, of course, he's got diabetes, kidney problem. So I did not go into details of the history. फिर जब भी patient follow-up के लिए आए और बोला कि मेरी हिचकी पूरी बंद होगी, then I went and took some more details of the case. So that's when the wife again said ना कि company इनको छोड़ नहीं रही थी. Means this person must be somebody who must be doing his work so wonderful कि retirement की age के बाद भी company doesn't want to leave such an employee. So इतना fastidious और इतना अच्छा काम करने वाला बंदा तो arsenic जैसा ही होगा ना. So of course I didn't go into details of that, but what I got was, the patient said that of course because of kidney problem and diabetes, body pain is there, and she said कि इनको खाना महकता है, मतलब खाना देखो तो महकता है, मतलब because he is from North India, and he said खाने की खुशबू आई तो भी महकता है. So this was nausea, looking at food, nausea, smell of food, which was also covered by arsenic.
एंड देन उनका जो लाइफ हिस्ट्री था, दैट ही वाज द एल्डेस्ट ऑफ हिज ऑफ ऑल द ब्रदर्स। उन्होंने अपने भाइयों को भी सेटल किया था, काम का, शादी का, और दो बेटे हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं, एंड ही इज रिटायर्ड पेंशनर एंड नाउ ही इज ऑन ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे आई ऑल्सो टुक एज दैट ही वाज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ना, भाइयों को सेटल किया, उनकी मतलब जॉब वाइज, मैरिज वाइज, सो responsibility taking too seriously. This was also covered by arsenic. So all through and through it was arsenic. But in the beginning, the patient very beautifully gave the symptoms. और हमको बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अंदर आए, वेनेरेशन, टेबल पे बैठे, दूसरा एक जेस्चर दिखा दिया, और तीसरा एक रूब्रिक लेके द रेमेडी वाज आउट। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, इट इज वेरी सिंपल and you don't miss out the beginning. Okay, so this was a case of arsenic. He is doing very well on arsenic now, LM potency. So he's well settled. His nausea or his appetite also has improved. Okay, so we have some time, so we'll go to the second case. So somebody was saying कि बहुत छोटा के और कुछ भी rubrics नहीं है, कुछ भी history नहीं है. So ये भी एक patient. This is a lady aged 52. She also has got diabetes. ठीक है, बट इसकी डायबिटीज इज ओनली 5 to 6 years से डायबिटीज है उसका, और शी हैज ओनली 1 kidney बिकॉज शी हैज डोनेटेड हर किडनी टू हर सन। बेटे को भी क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सो उनको शी हैज गिवन 1 kidney टू हर सन इन 2021। एंड अभी रिसेंटली 2 साल से शी हैज गॉट अर्टिकेरिया, और बहुत इचिंग होता है बॉडी पे, उसको पूरा रेड हो जाता है। शी हैज टू टेक वो सेट्रिजिन, एविल, बहुत सारी चीजें उनको लेनी पड़ती है। सो पेशेंट केम विथ हस्बैंड, हस्बैंड पहले आए और उन्होंने पूरी फाइल निकाली और पेशेंट की पूरी हिस्ट्री बताना शुरू करी। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, वाइफ को इंट्रोड्यूस किया, फिर उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है जिसको किडनी प्रॉब्लम है, ही हिमसेल्फ इज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैज कम फॉर ट्रीटमेंट। सो तो पेशेंट, और जब तक हस्बैंड इनके बारे में बता रहे थे तब तक पेशेंट टेबल के ऊपर बैठी थी ऐसे, टेबल के ऊपर हाथ रख के, ऐसा वाला उनका हाथ था मुंह के ऊपर, शी वाज सिटिंग। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद हस्बैंड को स्टॉप किया और फिर आई लुक्ड एट द पेशेंट और मैंने कहा कि अभी आप बताओ। सो पेशेंट सेड, बस ये खुजली का है, मुझे बस ठीक होना है, आपसे दवाई लेनी है और ठीक होना है, आपसे दवाई लेनी है और ठीक होना है। सो मैंने उनको पूछा कि टेंशन आपको क्या है, तो शी सेड टेंशन कुछ नहीं। सो फिर भी मैंने उनको थोड़ा और पुश किया कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ आप फिक्र करते हो आप खुजली को लेकर। तो शी सेड नहीं, घर में तो थोड़ा होता ही है ना। सो आई सेड क्या होता है घर में, बट शी वाज रिलक्टेंट टू से, शी वाज नॉट सेइंग इजीली। देन मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि व्हाई आई एम आस्किंग ऑल दिस। सो आफ्टर व्हेन आई एक्सप्लेन, देन शी ओपनड अप। सो द हिस्ट्री वाज कि इन 2021 हस्बैंड हैड हेल्प्ड हर ब्रदर। तो हस्बैंड ने अपना पीएफ के पैसे निकाल कर पेशेंट के भाई को दिए थे, यानी अपने साले साहब को दिए थे, और बोली कि भाई है कि दे ही नहीं रहा, कहता है जब आएंगे पैसे तब दूंगा, और अब मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, और पिताजी भी बात नहीं कर रहे। और पिताजी और भाई मतलब जिन्होंने पैसे लिए हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम हमारे घर भी मत आओ। तो अब मेरे से बात नहीं करते, बोलते मेरे को अपने घर मत आओ। सो आई सेड आप इसको लेकर क्या सोचते हो? तो बोली सोचती हूँ कि अभी बच्चों के लिए पैसे चाहिए, अपने ही पैसों के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ रही है, तो गुस्सा नहीं आएगा? माँ होती तो कुछ सहारा होता, बस यही है। सो मैंने बोला और डायबिटीज को लेकर आपको कुछ फिक्र हो रही है? तो बोली नहीं, सोचती हूँ, दवा खा रही हूँ, ज्यादा नहीं है, चलेगा तब तक चलेगा, टेंशन बस यही चीज का है कि खुजली बढ़ रही है। सो दिस इज द केस। यहाँ पर भी कीप इट सिंपल, think simple, and let me know what your understanding. Yes, क्या समझा? मैम जहाँ पे वो कह रही हैं कि अपने ही पैसे मांगने पड़ रहे हैं, भीख मांगना पड़ रही है, उसके आगे क्या बताया आपने?
उसने बोला कि अपने ही पैसे मांगने पड़ रहे तो गुस्सा नहीं आएगा? माँ होती तो, उनकी मम्मी नहीं है तो बोली माँ होती तो कोई सहारा होता, ऐसे बोली वो। बस यही है। केस समझा आपको? पेशेंट को अर्टिकेरिया है, मैम itching हो रहा सबसे पहले, जी जी है। जी मैम, बताइए। सबसे पहले वो कैरी डिजायर टू बी कैरिड आपसे ठीक होना चाहती है। ओके, वेरी गुड। और हेलो मैम। हेलो यस, मैम। हाँ मैम, मुझे ना उसका एंगर राइटिस लगा कि सही है ना, हमारे ही पैसे हमको नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे एंगर इंडिग्नेशन लगा। और एंजाइटी मनी और एंजाइटी चिल्ड्रन भी लगा, अभी मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, जब जरूरत है तब पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कहाँ बोला उसने कि क्या होगा कैसे होगा? ऐसा कहाँ बोला? पर बच्चों के लिए पैसे चाहिए ना मैम उसको। बच्चों के लिए पैसे चाहिए, बराबर है, बट उसने क्या बोला अभी फिर बच्चों मनी, हम्म, एंजाइटी मनी तो हो सकता है ना। हो सकता है, बट आप हम्म। सोचो एंजाइटी मनी है क्या कुछ और है? एंगर इंडिग्नेशन तो लगा ही मुझे, बट मेन क्या चीज है उसका? माँ होती तो सहारा होता। ओके, मैम वो फॉर सेकंड फील कर रही है क्यों फॉर सेकंड फील कर रही है? कि उसकी मदर नहीं है। मदर नहीं। और थोड़ा सोचिए, क्या नाम है मैम आपका? गुल, डॉक्टर गुल फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, यस डॉक्टर गुल, यू थिंकिंग वेरी करेक्ट। क्यों फॉर सेकंड क्यों लग रहा है आपको? और भाई बात नहीं कर रहा, ये दर्द है क्या उसको? भाई और हाँ, पिताजी, भाई और पिताजी बात नहीं कर रहे, ये दर्द है। आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? यही यही दर्द है, ऐसा मुझे यही लग रहा दर्द है है मैम। इसका, ओके। ओके ओके ओके, गुड गुड, यस। तो ये क्या है, क्या सोचेंगे इस चीज को? दुख है क्या मैम, ग्रीफ है क्या उसको? आप पूछ रहे हो मेरे को? डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड? क्यों डिसअपॉइंटेड, क्यों? मैम क्या ये रॉन्ग वर्ड है? आप बताओ। सिंपल सिंपल चलो, सिंपल सिंपल चलो, एंट्री से चलो फिर से। मैम बिट्रे फीलिंग, कौन सा फीलिंग? बिट्रे, धोखा, पैसा डिस्ट्रेस? लिया और नहीं दिए। नहीं, वो बहुत आगे आगे जाके वो ट्रैक चेंज हो रहा है। सिंपल सिंपल चलो, पेशेंट ने स्टार्टिंग में क्या बोला? अब से ठीक होना है, वो तो कैरी डिजायर है ना मैम। हाँ बिल्कुल, वो चीज को छोड़ो मत ना। पेशेंट ने बोला ना आपसे ठीक होना है, ठीक होना है, बस आपसे ठीक होना है। और क्या है ये? यार सोल्जर ओवर। यस, वेरी गुड। बस ठीक होना है, आपसे दवा लेनी है मैम और ठीक होना है। एग्जैक्टिव टू, हाँ, एग्जैक्टिव टू, क्यों एग्जैक्टिंग टू? कि वो पॉइंट की बात कर रही है कहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट? में। वो तो सिर्फ दवाई लेने के लिए वो पॉइंट की बात कर रही है ना। एग्जैक्टिंग टू मतलब फिर वो सब जगह पर आपको दिखेगा। ओके मैम। मैम वो लास्ट रूब्रिक क्या था, कैरी डिजायर शोल्डर ओवर। हम्म, उसमें तो तीन ही रेमेडीज है ना, स्ट्रैम, तीन नहीं चार, स्ट्रैम, सीना,
ठीक है, आगे आगे तो आप सोचो, आगे बताओ। अभी इसके अंदर तो हिस्ट्री है काफी, तो पहले केस के जैसे थोड़े रूब्रिक्स नहीं, इसमें बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। पेशेंट ने जो अपनी सिचुएशन को लेकर बताया वो क्या था, उसमें से आपको क्या, हाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पेशेंट? हेल्पिंग नेचर है क्या? हस्बैंड को पीएफ दे निकाल के पैसे देने लगा है। हेल्पिंग नेचर वो सबके लिए होना चाहिए ना, फिर हेल्पिंग नेचर। खुद के पीएफ के पैसे निकाल के भाई को दिया ना, मतलब वो तो उनका भाई था तो उन्होंने दिया। मैम मेरा ऐसा है, अफेक्शनेट जस्ट स्माइल। Pardon? hand gesture make hand involuntary motion of covering mouth with hand और fear disease of impending carry desire to be carried shoulder over मैम हाँ, medicine कम sternum metallicum अच्छा। स्टैनम मेटालिक। और कोई? जैसे तो एक कंफर्म यूज है एंड ना थ्रो मैम? वाला फीलिंग आया। Pardon? एक यूज एंड थ्रो वाला फीलिंग आया। यूज एंड थ्रो वाला फीलिंग है, अच्छा। तो जब उसके लिए, जरूरत थी तभी पैसा लिया और फिर बाद में, हाँ, ओके। जब जरूरत थी तभी पैसा लिया हम्म, और फिर बाद में अभी पैसा भी नहीं लौटा रहे और निगलेक्ट कर रहे हैं उनको। अच्छा। तो यहाँ क्या समझेंगे आप, पेशेंट का जो स्टेट है वो क्या फील कर रही है इस समय? रॉन्ग सफर। उसने ऐसा बोला, रॉन्ग सफर्ड में ऐसा उसने इस तरीके से बोला कि मेरे साथ गलत हुआ? उन्होंने क्या बोला कि पीएफ के पैसे निकाल के दिए और भाई है कि दे नहीं रहा, कहता है जब आएंगे तब दूंगा, और अब मुझसे बात नहीं कर रहा है। पिताजी भी मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मुझे बोला कि बोलते हैं घर मत आओ। अपने ही पैसों के लिए भीख, दूसरों से भीख मांगनी पड़ रही है तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? माँ होती तो कुछ सहारा होता, बस यही है। ये सिचुएशन से आपको पेशेंट के बारे में क्या समझ में आ रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अनफॉर्चुनेट फीलिंग। नहीं मैम, अनफॉर्चुनेट विल बी वेरी वो कंडीशन जहां पर कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी ना। ये जो सिचुएशन हुआ उसका द रिजल्ट वाज एंगर। जो भी सिचुएशन उनके साथ हुई, द रिजल्ट वाज एंगर, एंड दैट्स द रीजन हाउ शी इज गेटिंग दैट इचिंग ना, if we understand it from the metaphysics. But what is she feeling all in all? Indignation, ma'am. Fun feeling. Indignation. Indignation. Okay. और फन फीलिंग। हेलो? और फन फीलिंग। मैं होता, मैं नहीं है। ये इंडिग मैम इसके ही पैसे इसके काम नहीं आ रहे। हाँ, इसके ही पैसे इसके काम नहीं आ रहे। उसके रुके पैसे काम नहीं आ रही ना, उसके पास पैसे हैं ही नहीं ना अभी। उसके पास पैसे हैं क्या? भैया के पास है। भाई के पास है ना, तो इनके पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो हेल्पलेस होगी ना मैम, हेल्पलेस। हाँ, एक तरीके से हेल्पलेस है क्योंकि उसको पैसे चाहिए और पैसे नहीं है, जबकि भाई दे सकता है पैसे, भाई ने देने चाहिए, भाई दे नहीं रहा है, तो हेल्पलेस वाली फीलिंग तो आएगी डेफिनेटली। और क्या आएगा, और क्या सोच रही है पेशेंट, क्या सोच रही है ये सिचुएशन में?
मैम 4 सेकंड Wrong फीलिंग suffer तो का है feeling- ही। देने ही नहीं चाहिए थे, रॉन्ग डन। नो नो नॉट रॉन्ग मैम। Wrong suffer, 4 सेकंड wrong फीलिंग suffer. किसने बोला? यस मैम 4 सेकंड फीलिंग तो है। 4 सेकंड फीलिंग है, वेरी गुड। 4 सेकंड फीलिंग इज देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 सेकंड? अपने लोगों ने छोड़ दिया। वेरी गुड। छोड़ दिया ना, भाई ने छोड़ दिया, फादर ने बोला मत आओ, तो उससे तो फील होएगा ना, 4 सेकंड फीलिंग आएगा ना पेशेंट को, राइट? वेरी करेक्ट। हाँ, abandoned by relative. abandoned by relative. आप 4 सेकंड फीलिंग ब्रॉडर इससे चलो, Okay. हाँ ब्रॉडर इससे चलो, दैट विल बी मच करेक्ट। और आर्सेनिक आ रहा है मैडम। क्या क्या डाला है सर आपने? Mind carried desire to be carried. ओके, Gesture make hand in. और mind for second feeling beloved. Parents, wife, friend feeling of not being. वो तो आपने वैसा क्यों लिया सर? पेरेंट है तो पेरेंट ने छोड़ दिया ना। तो उसके साथ दूसरा भी है ना, पेरेंट्स, वाइफ, ऐसा भी है ना? मतलब कोई भी छोड़ दिया तो उसमें आएगा ना, उसको ले सकते हैं ना। नहीं सर, अब उसमें स्पेसिफिकली जो जो मेंशन किया है वो सबने छोड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि वो स्पेसिफिकली वो रूब्रिक के अंदर बहुत स्पेसिफिक मेंशन किया है सर। तो जब भी आप ऐसे जाएंगे तो अगर अभी उनकी जैसे जो स्पाउस का है, मान लो जैसे शी इज अ फीमेल, तो वाइफ हस्बैंड का तो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट है। सो यहाँ पर आप ये चीज को ऐसा नहीं समझेंगे ना, इसीलिए आप ब्रॉड इससे जाओ, आप फॉर सेकंड फीलिंग आप ले लो। मैम बाय हिज पेरेंट्स, हाँ 4 सेकंड फीलिंग बाय हिज पेरेंट्स, फ्रेंड्स बोल सकते हैं क्या? फॉर सेकंड फीलिंग बाय हिज पेरेंट्स, फ्रेंड्स ऐसे लिखा है मैम, रूब्रिक है। फ्रेंड्स कहाँ है यहाँ पर? पर उसके आगे लिखा है पेरेंट्स कॉमा फ्रेंड्स रिलेटिव, इस तरह से लिखा है। So if you are narrowing down to a rubric, then it is going to be, it has to be very, very specific. यहाँ पर भी पेशेंट ने स्टार्टिंग में जब पेशेंट अंदर आई तभी उन्होंने भी नमस्ते किया था, और उसके बाद पेशेंट ने जो बोला आपने लिया। तो भी आप ये रूब्रिक्स यूज करके देखो, आप डालिए ये रूब्रिक्स। क्या रेमेडी लग रही है ये पेशेंट की? स्ट्रामोनियम। क्या बोल रहे हो? स्ट्रामोनियम। वाई स्ट्रामोनियम? मैम पोडो है क्या? पोडो, पोडो फाइनल। आप पूछ रहे हो, आप बताओ स्ट्रामोनियम की। पोडो ही आ रही है मैम। मैंने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, कैरेट डिजायर टू बी कैरेट सोल्जर ओवर, फीलिंग हेल्पलेस फीलिंग, स्ट्रामोनियम आ गया। ओके ओके, ठीक है। यस, दिस रेमेडी इज स्ट्रामोनियम, वेरी करेक्ट। बट इसका अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जैसे पेशेंट ने मतलब अंदर आए तो पेशेंट ने अगेन वेनरेशन था, पेशेंट ने नमस्ते करी थी, और उसके बाद जब भी उनको मैंने पूछा कि आप बताओ, तो वो क्या बोली मुझे कि बस ये खुजली है, मुझे ठीक होना है, आपसे दवाई लेनी है और ठीक होना है। तो वो बोल रही है ना, आपसे दवाई लेनी है, ठीक होना है, तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरिड डिजायर शोल्डर ओवर, आपसे ठीक होना है मैडम। उसके बाद जब मैंने उनसे टेंशन के बारे में पूछा तो शी वाज नॉट ओपनिंग अप, बट बाद में जब शी ओपनड अप देन शी सेड ना कि भाई ने पैसे ले लिए, एंड व्हाट इज अ वर्ड दैट शी इज यूजिंग। जैसे सर हमेशा बताते हैं ना कि वर्ड्स को हमको बहुत अहमियत देनी होती है, they're very important, how we use the words, what we say, you know, so we have to give importance to that. So what patient said कि अपने ही पैसों के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ेगी तो गुस्सा नहीं आएगा। So गुस्सा, yes,
बट पेशेंट का स्टेट क्या है कि अभी उसके पास पैसे कम है और उसको दूसरों से क्या मांगना पड़ रहा है? बेग करना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है. दिस इज बेगिंग. So here I understood it as begging. And then she said कि भाई ने छोड़ दिया है. अभी कोई भी इंसान के लिए एक जो सहारा जैसे हम बोलते हैं, फैमिली का सहारा रहता है. सर एक्सप्लेन करते हैं पैसे का सहारा रहता है. इसके पास पैसे भी नहीं है, फैमिली का भी मतलब जैसे पेरेंट्स, फादर, ब्रदर, सबने उसको बोला है मत आओ घर. तो इसको क्या फील हो रहा है अभी? अगर आप कोई, हाँ, आप 4 सेकंड के साथ साथ और भी सोचो कि आपको अगर कोई बोलेगा मत आओ, इसने भी, ये भी, आप फादर भी बात नहीं करेंगे, भाई भी बात नहीं करेंगे, तो क्या फील होगा आपको? निग्लेक्टेड. और सोचो. रूडनेस. अपमान, अपमान लगेगा ना. अरे अकेली पड़ गई है ना ये. Alone wilderness in the अलोन ना, अकेली पड़ गई है ना ये. किसी का सहारा, शी सेड ना, माँ होती तो सहारा होता. अभी किसी का सहारा है क्या इसको हस्बैंड के अलावा? नो. नहीं, अकेली पड़ गई ना ये. सो इसलिए फॉरसेकन, आइसोलेशन सेंसेशन, फॉरसेकन फीलिंग, डिल्यूजन, अलोन शी इज, एंड अलोन इन द वाइल्डरनेस. यस, वेरी गुड. एक वो जैसे पूरा छोड़ दिया ना उसको सबने, मतलब फादर नहीं, जैसे उसके लिए तो वो फैमिली वाज इम्पोर्टेंट ना. अभी फैमिली ने ही उसको छोड़ दिया. फादर ने बोला घर मत आओ, भाई ने बोला घर मत आओ. सो इसे वो जो स्टेट है उसका, इट इज दैट उनको, उसको छोड़ दिया, अकेली हो गई है वो. इसलिए शी सेड ना, माँ होती तो सहारा होता. यस, दिस इज स्ट्रैमोनियम, and very beautifully the patient opened up with carried desire to be carried. So this is also stramonium, and patient is doing very well with stramonium. Recently she came and she said ki itching is reduced 80%. And diabetes को लेके patient ने क्या बोला था? जब मैंने पूछा डायबिटीज का कुछ फर्क, कोई फिक्र है, तो क्या बोली पेशेंट डायबिटीज को लेकर? वहां पे पेशेंट का कैसा था एटीट्यूड? शी सेड सोचती हूँ ज्यादा नहीं है, दवाई खा रही हूँ, चलेगा तब तक चलेगा. ये क्या है? फ्रिवोलस क्या मैम? वेरी गुड. दिस इज फ्रिवोलस. This is frivolous. So all in all, this patient is stramonium. Okay, so first was arsenic, second patient is stramonium. Both are diabetes and both have come with their history, but जैसे patient बताते हैं तो बहुत simple rubrics लेके, बहुत simple understanding के साथ you can treat this patient. And we have to also guide her because she is diabetic with one kidney. So there is chances of infection. So ये patient का जो frivolous attitude है, this has to change, na? Otherwise she will have problems later on. So, but with stramonium, she said that अभी मैंने walk करना start कर दिया. So it's a long way to go to help her understand and overcome her frivolousness. But this is stramonium. Very good. So all those who have understood carried desire and forsaken is very nice. So मैडम वहाँ पर जो बोले ना, मैंने ठीक होना चाहिए, इसमें किल डिजायर टू जानना है कि नहीं? किसमें? किल डिजायर टू. किल डिजायर टू. किल डिजायर, हाँ सोच सकते हैं, लेकिन उसमें पेशेंट का जिस तरीके से पेशेंट बोलता है वहां पर भी होता है ना पेशेंट का एक्सप्रेशन, या किल डिजायर या खुजली करते वक्त भी पेशेंट बोलेगा, तो वो आपको फिर हर जगह वो चीज दिखेगी. सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर से आप रूब्रिक नहीं बना सकते, उसमें अक्सर फिर आपसे मिस्टेक हो जाएगी. तो अगर वो किल डिजायर है तो पेशेंट का एक्सप्रेशन भी रहेगा कि ये ठीक होना चाहिए, या इतनी खुजली आती है कि मेरा ऐसा खून निकल जाता है, तो वो अगर कुछ इस तरीके से रहा देन किल डिजायर आएगा. बट ऐसा ये पेशेंट के अंदर नहीं था. ओके मैम एक क्वेरी है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम और वेनरेशन बता दें. तो वेनरेशन जैसे सर ने हमेशा बहुत अच्छे से बताया है कि
या तो पेशेंट सिर झुकाते हैं या हाथ जोड़ते हैं, या तो वेनरेशन इज लाइक जब हम किसी अपने से जो बड़े ओहदे वाले रहते हैं, जैसे टू द चेयर, जैसे डॉक्टर है, भगवान है, उनके सामने हमारा सिर झुकता है, सो दैट इज वेनरेशन। वो एक पर्टिकुलर पर्सन या पोजीशन के लिए है। एंड दूसरा है रेवरेंस टू दोज अराउंड हिम, यानी रिस्पेक्ट सबके लिए। तो जैसे पेशेंट अंदर आएंगे तो वो आपको भी रिस्पेक्ट देंगे, आपके साथ अगर कोई स्टूडेंट बैठे हैं उनको भी रिस्पेक्ट देंगे, आपके रिसेप्शन वालों उनको भी रिस्पेक्ट, सबसे रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। दैट इज रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। बहुत सी बार पेशेंट सिर्फ डॉक्टर है इसलिए उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए वहां पर हम वेनरेशन लेंगे, और जब सबको रिस्पेक्ट दिखाते हैं तब हम रेवरेंस सोचेंगे। यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू। रिक्वेस्ट मैम, लिया। यस, डोजेस एंड पोटेंसी बताओगे प्लीज? किसकी? दोनों केसेस में, आर्सेनिक और स्ट्रेमोनियम। आर्सेनिक का बिगिनिंग में आई जस्ट गेव 30 पोटेंसी सिंगल डोज, बिकॉज आई सेड ना कि वो इट वाज अ कंडीशन ऑफ सीकेडी प्लस डायबिटीज, सो आई ओनली गेव सिंगल डोज, जिससे उनकी हिचकी बंद हो गई। उसके बाद जब मुझे और कंफर्मेशन आ गया कि दिस पेशेंट इज थ्रू एंड थ्रू आर्सेनिक, नाउ आई हैव पुट द पेशेंट ऑन LM पोटेंसी 0/1, नाउ ही इज ऑन 0/3। और स्ट्रेमोनियम के अंदर आई हैव गिवन हर right now to begin with, I have given her stramonium 200, or after that I'll also put her on LM potency, because she is having one kidney and she is having diabetes also, basically. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Over to. Thank you, ma'am. Thank you. Over to the host. Over to the host. Okay, can I add something to your case? Yes, please. Yeah. See, the lady said about diabetes. What did she say? कि शुगर है, गोली ले रही हो, चल रही है, चलने दो. What she said? चलेगा तब तक चलेगा. चलेगा तब तक चलेगा. ये क्यों कहता है पता है स्टेमोनियम? बिकॉज दो रूब्रिक जो है, जो मेरे बहुत फेवरेट है स्टेमोनियम के, एक डिस्पेयर ऑफ सैल्वेशन. सैल्वेशन मतलब इससे मुक्ति नहीं है, मुझे पता है अभी इससे ठीक तो होना नहीं है, चल रहा है जब तक चलने देंगे. ये रूब्रिक में बहुत बार यूज करता हूँ. इससे ठीक तो होना नहीं है, तो चल रहा है जब तक चलने देंगे. ठीक है, ये एक रूब्रिक यूज करो, बहुत अच्छा है. इट हैज गॉट ओनली 33 रेमेडीज. 33 इज वेरी शॉर्ट. आई मीन 4000 रेमेडीज होम्योपैथी के अंदर 33 इज वेरी स्मॉल. ओके, इसके अंदर रेयर रेमेडीज है ही नहीं. लाइक ऑरम मार्स, ऑरम आयड, ऑरम सल्फ, ये रेयर है. कैल्केरी आर्स ये रेयर है. But still aurum is a common thing. Aurum is common. Okay. So this is a very good rubric. This I use a lot. Despair, religious despair of salvation. ठीक तो होने वाली नहीं है, चल रहा है जब तक चलेगा. ये एक रूब्रिक बहुत आई यूज इन स्ट्रेमोनियम. सेकंड, स्ट्रेमोनियम को जब पता चल जाता ना कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद स्ट्रेमोनियम इंडिफरेंस टू सफरिंग में चला जाता. ओके, सो दिस टू रूब्रिक्स आर देयर. तो बोलता चलो ठीक है ना, अभी क्या सफर का क्या पता चल गया है, चलना है. बिकॉज ऑफ कोर्स, बिकॉज स्ट्रेमोनियम इज फ्रिवलस. स्ट्रेमोनियम हैज वन मोर रूब्रिक, डिलीजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल. क्योंकि स्ट्रेमोनियम इतना फ्रिवलस रहता है, इतना वो, क्योंकि स्ट्रेमोनियम एज इट इज अ पॉइजन ना, वही है ना वो. उसमें अल्कलॉइड क्या है स्ट्रेमोनियम के अंदर? व्हाट इज द अल्कलॉइड स्ट्रेमोनियम? अल्कलाइड है ना. अल्कलाइड मतलब नशे के लिए यूज होने वाली चीज है ना. ऑल द अल्कलाइड्स यूज फॉर सुट्टा मारना, धतूरा, या तो फिर वो धतूरा ना. तो वही तो अपन गाली देते ना, क्या धतूरा होने वाला, अपन बोलते हैं ना. हेलो, हम लोग बोलते हैं ना क्या धतूरा होने वाला है. तो धतूरा इज अगेन पॉइजन. तो ये पॉइजन के अंदर ये चीज होती है, इंडिफरेंस हो जाता है इन लोगों में. These people get indifferent to suffering. These people feel that things are small. Okay? तो ये स्ट्रेमोनियम के अंदर ये एटीट्यूड मैंने देखा हुआ है, जो कई बार हमको प्लेटिना लगता है. थोड़ा सा स्ट्रेमोनियम, व्हेनेवर स्ट्रेमोनियम कम्स और व्हेनेवर प्लेटिना कम्स, थिंक अबाउट ईच अदर. ओके, हम लोग बोलते हैं, शायद निशु ने बोला कि लेक्चर में, पता नहीं, हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेमोनियम इज सस्ता प्लेटिना. ओके, सस्ता प्लेटिना इज स्ट्रेमोनियम. ऑल इन ऑल, lovely explanation. Liaquat, you can share that money wala rubric also, na? You had shared this.
complete repertory का और money वाला. Illusions, money, money. yeah, there's a beautiful rubric. Yes, there's a complete repertory में बहुत अच्छा है. Complete repertory is real complete repertory. Yeah, please remember. The name itself is so beautiful about the remedy, the repertory, है ना? Complete repertory is, there is a rubric delusion, imaginations, money. बस ऐसा rubric है. Delusion, imagination, money. Okay. Now there are 11 remedies. Out of that, alcohol निकाल दो, spectra निकाल दो, cladonis भी बहुत यूज करते हैं आजकल हम लोग. So there are 11 odd remedies. If you remove 2 remedies, there are only 9 remedies in that. Delusions, money. Okay, this lady was talking about money throughout, right? Yeah. So that is why we get confused to talking business. Maybe I think Stramonium hai, of course, Okay. but delusions, money. So Stramonium, money does matter. One of my friend told me that, Liaquat, what do you feel when you earn money? I said, it's okay, cool. If I earn, fine enough. So my friend has said, money is power. Money gives you a sense of being powerful. Remember that. अब वो जो you remember na, the incident that has recently happened, the very evil incidents happened in Pune. A rich man's son, killed 2 people in the accident, and how he came out. Even the judge passed a judgment कि you write an essay on accident. So that happened only because of money. So money has power. Money is power, remember. Okay, so there are very nice remedies: Calibrome, calcarea, MacCarps, Stramonium, Zincum, Belladonna, aluminum, and alcohol. These are the remedies in there. Yesterday we discussed about that with Dr. Manish. Yeah, very nice lecture and very nice questions. Today's response was also very good. See Thank how you. simple remedies, what simple remedies are against Stramonium. Can you imagine being a diabetic lady being treated with Stramonium and by such a senior homeopath? Please remember, if an amateur is using, we can say he is experimenting. But a senior homeopath of Dr. Manisha's caliber, she is a principal of a college using Stramonium. Please remember, it carries a lots of weightage. It carries a lots of meaning. So we are trying to give meaning to the practice. Please remember, like I am a poet. I mean, I write poetry, so I try to put meanings in the sentences. So Dr. Manisha, you have put meaning in the practice. Very nice. Thank you very much. It's been Thanks a to pleasure you. listening. Thank you. Come on, it's a Thank pleasure. you. Thank you guys. Thank you for being there. It's a 96th lecture. Wonderful series happening. And now we are coming to the climax of the series. You're going to see more beautiful lectures equal to Dr. Manisha's lecture today. Thank you. God bless you. Allah Hafiz. Stay cool. Have a happy learning, guys. Thank you, ma'am. Thank you, sir. sir. Thank you, Thank you, ma'am.